इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरे जैसा कोई नहीं है। आइए हम सब उसकी ओर देखें। इस शाम के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। We love you, Lord. तुझसे प्रेम करते हैं। We give you all the praise, Father. सारी महिमा तुझे देते हैं। You alone deserve every praise, Lord. तू ही केवल महिमा के योग्य है। We love you, Lord. हम तुझसे प्रेम करते हैं खुदा। Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं। We thank you for you inhabit the praises of your people. हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू अपने लोगों की स्तुतियों में रहता है। Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं। तुझे ऊंचा उठाते हैं खुदा। Thank you, Father. धन्यवाद करते हैं। We thank you for your grace, Lord. तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद खुदा। We thank you for you showed us a new day, Lord. हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमें नया दिन दिखाया है। We love you, Lord. हम तुझसे प्रेम करते हैं। We thank you for whenever we call out to you, you listen, Father. हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि जब कभी भी हम तुझे पुकारते हैं तू सुनता है। We thank you for your word says, call unto me and I will answer you. और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू कहता है कि तू पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। We love you, Lord. हम तुझसे प्रेम करते हैं। We thank you, Father. हम धन्यवाद करते हैं खुदा। Whatever we do is for your glory, Lord. जो कुछ हम करते हैं तेरी महिमा के लिए। Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं। Thank you, Father. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर।
घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। We are not worthy of your presence, Father, but still you sit with us, Father. We are honored by your presence, Lord. You deserve all the glory, Father. You are worthy of everything. You alone are worthy, Lord. तू योग्य है खुदा, सारी महिमा तुझको ही खुदा। Thank you, Lord. तेरे सामने झुकते हैं खुदा। आगे का संपूर्ण समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। We give you this worship as a pleasing sacrifice, Lord. Accept it as a pleasing sacrifice, Father. We humble ourselves before you. We thank you for you never forget about us, you never forsake us, Father. In Jesus' name I pray, amen. Nice to see you all after a week again. और आप सबों को देखकर अच्छा लगा हफ्ते के बाद। It's awesome. ये Wonderful. अद्भुत है God is doing a great works in all of our lives. और परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करता है Each one of us are having a great experience. और हम में से हर एक के पास अद्भुत अनुभव है। I thank God for all these testimonies. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उन सारी गवाहियों के लिए। Each one of you, your tears, God has seen. आप में से हर एक के आंसुओं को परमेश्वर ने सुना है And God is going to reward you. और परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। Don't worry. चिंता मत करिए। Truly God is good. और सच में परमेश्वर अच्छा है। He is kind, He is loving, He is वो great. प्रेमी है, वो दयालु है, वो महान खुदा है। Let everything that has breath praise the Lord. जिस किसी को श्वास है वो प्रभु की स्तुति करे। आमीन। Greetings to you all. आप सबों को अभिवंदन। We love you हम आपसे प्रेम करते हैं in Jesus' name. यीशु के नाम में। Truly love to be with you all और आपके साथ रहना हमें अच्छा लगता है because we are learning to be with each and everyone. For we are going to spend a time from eternity to eternity in coming days. क्योंकि आने वाले दिनों में हम अनंत काल से अनंत काल तक हम समय को Our बिताएंगे meeting should be more often और हमारा मिलना अक्सर होना चाहिए because we all used to come together in that building क्योंकि that हम room. उस रूम में सब मिलते थे as a church, कलीसिया होकर but पर it stopped. वो रुक गया It stopped. वो रुक गया Now we are meeting in Zoom, अब हम जूम में मिल रहे हैं and this place और ये जगह God has given us to worship. परमेश्वर ने हमें ये आराधना करने के लिए दी है But now पर अब we don't know really when this social media will stop. हमें नहीं मालूम कि ये सोशल मीडिया कब खत्म होगी They may ban
हो For सकता church. है कलीसिया के लिए ये बैन हो जाए, We don't know. हम नहीं जानते। But dear brethren, पर हे भाइयों और बहनों, do not stop gathering together. मिलना आप छोड़िए मत। Whatever may be the situation. परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, Because our gathering, क्योंकि हमारा मिलना, coming together, हमारा इकट्ठा होना gives us strength. हमें सामर्थ्य देता है, For His presence comes in our midst. क्योंकि उसकी उपस्थिति हमारे बीच में आती है। Our prayer, our Zoom church is not just a miracle center, ये जूम चर्च जो है वो केवल चमत्कारों का सेंटर नहीं है, but it's a transforming center. पर वो बदलाव लाने वाला सेंटर है। Truly, God is going to transform our lives if we are ready. और अगर हम तैयार है तो परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव लेकर We आएगा are going to experience Him marvelously. और हम उसका अद्भुत रीति से हम उसका अनुभव लेंगे। I thank God for each one of you, मैं धन्यवाद करता हूँ आप में से हर एक का, for all your prayers and blessing. आपकी सारी प्रार्थनाओं और आशीषों के लिए। Really, we thank God. और सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद God करते is हैं। good to us all. परमेश्वर हम सबों के लिए अच्छा है, He is awesome. वो अद्भुत है। If we desire to lift Jesus high, अगर हम इच्छा रखते हैं प्रभु को ऊंचा उठाने की and put Satan down, और शैतान को नीचे डालने के लिए, then तब we need to get rid of many things. हमें बहुत सारी चीजों से छुटकारा पाना होगा। Amen. आमीन। We need to prepare a mind, a heart. हमारे हृदयों को, हमारे मन को, हमारे हृदय को बनाना होगा। Amen. आमीन। First of all, me सबसे पहले मैं, need to change. वो बदलना बहुत जरूरी है। Then our family. सबसे पहले मैं बदलना जरूरी है, बाद में मेरा परिवार। We need to work out. हमें काम करना है। As Rekha said for Oracle, जैसे रेखा ने कहा ओरेकल के लिए, we need to work on our children. हमें हमारे बच्चों पर काम करना Before जरूरी है। working on our children, हमारे बच्चों पर काम करने से पहले we should work on our own lives. हमें खुद के जीवन पर काम करना जरूरी है। Amen. आमीन। We love to see Sadhana back home. और हमें अच्छा लगा साधना फिर से घर पे लौट के आई। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Truly, God has kept her as an example in the house. और सच में परमेश्वर ने साधना को एक उदाहरण करके रखा है। Her husband pasted her, उसके पति ने उसे मारा, removed her, निकाल दिया, but पर the same God वही परमेश्वर on whom she trusted, जिस पर वो भरोसा करती she है, prayed, उसने प्रार्थना की, she believed, उसने विश्वास किया, He brought a great transformation in her husband's life. और वो परमेश्वर उसके पति के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। Her husband came, उसका पति आया and you have heard the testimony. और आपने उसके गवाही को सुना। Truly, God is good. सच में परमेश्वर अच्छा है, He is awesome. He is wonderful. वो अद्भुत है और महान है। We are not here to satisfy one another or to show off something. और यहाँ पर हम इसलिए नहीं है कि हम एक दूसरे को तृप्त करें या किसी को कुछ दिखाए, But we are here to satisfy our God. हम यहाँ पर है कि हम हमारे प्रभु को तृप्त करें। We are here to say, Lord, change me. हम यहाँ पर है ये कहने के लिए कि प्रभु मुझे बदल, Change me, Lord. मुझे बदल पिता, I need you, Lord. मुझे तू चाहिए I need a परमेश्वर, great transformation. मुझे बहुत बड़ा बदलाव, मुझ में बहुत बड़ा बदलाव होना जरूरी है। Ask God. प्रभु से ये मांगिए। For we are hearing from many, I think, months or nearly year क्योंकि हम बहुत सारे महीनों से या तो साल से सुन रहे हैं that Lord's coming is at hand. कि प्रभु का आगमन बहुत ही नजदीक है। 7 years tribulation may start anytime. 7 साल का सताव कभी भी शुरू हो सकता है। But you know one thing,
पर आप जानते हैं एक चीज, police is a fearful, is a matter or a things of fear for a thief. पुलिस जो है चोर के लिए वो डरावनी हो सकती है, But पर not for a good person. अच्छे व्यक्तियों के लिए नहीं। In the same way, उसी रीति से 7 years tribulation 7 साल का सताव and our Lord's coming और हमारे प्रभु का आगमन may be a fearful thing for Gentiles, others, अन्य जातियों के लिए डरावना हो सकता है, or the people who will be left behind. या वो लोगों के लिए जो छूट जाएंगे। It may be fearful thing, ये बहुत ही डरावनी चीज है, but पर for us हमारे लिए who are going to be raptured, जो उठा लिए जाएंगे, it's a joyful thing. ये आनंद की बात है। In the midst of chaos, गड़बड़ी के बीच में, in the midst of tribulation, सताव के बीच में, before our great tribulation will come, महाक्लेश आने से पहले our Lord is going to appear in the clouds of glory. हमारा प्रभु महिमा के बादलों में आएगा। You know, if you look at it, you can serve God in a more enthusiastic way. अगर आप ऐसा देखते हैं तो आप और ही प्रोत्साहन के साथ, उत्साह के साथ प्रभु की सेवा कर You पाएंगे। need to know that Jesus is going to come soon. आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि यीशु जल्द आने वाला है। If you think, he will come, अगर आप सोचे हाँ वो आएगा, we will see. हम देखेंगे, I'm going to be in heaven. मैं स्वर्ग में उठा लिया He is जाऊंगा। merciful God. वो दयालु प्रभु He is not है, going to leave me in this hell. वो इस नर्क में मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। It's very true. ये सच है, He is not going to leave you. वो आपको छोड़ेगा नहीं। But you know the story of Noah. पर आप जानते हैं नोहा की कहानी को, नूह की कहानी। The doors were wide open. दरवाजे खुले थे, He was चौड़े, calling everyone. वो हर एक को बुला रहा था, But the choice was there. पर चुनावट उनकी थी। If you choose God, अगर आप परमेश्वर को चुने, if you choose His path, अगर आप उसके मार्ग को चुने, you will surely enter in, तो जरूर आप उसके अंदर जाएंगे and you shall be saved. और आप बचा लिए The जाएंगे। days of our Lord Jesus Christ हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन will be like a day of Noah. नूह के दिन जैसे होंगे। So we need to prepare our hearts, तो हमें जरूरी है हमारे हृदयों को बनाए, our mind, हमारे मन को, and we need to concentrate on Him. और उस पर हम ध्यान कर लगाए, For we are going home. क्योंकि हम घर जा रहे हैं। We all are going home. हम सब घर जा रहे हैं। See 1 Peter 2nd chapter and the first verse. पहला पत्रस 2 अध्याय पहला वचन। Get rid of it. उससे छुटकारा पाओ। Check your heart. आपके हृदय को जांचो, Check your mind. आपके मन को जांचो। Whom you hate. किससे आप नफरत करते Why हैं? you hate. क्यों आप नफरत करते What हैं? thing is eating you up. कौन सा चीज आपको खा रहा है? Which thought is putting you in trouble. कौन सा विचार आपको तकलीफ में लेकर आ रहा है? Yeah, the word of God says, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, get rid of yourself, therefore, of all malice, सारे वैर भाव से, सब deceit, छल, hypocrisy, कपट, envy, ढाव and slander. और निंदा से दूर करो। We need to check, am I given my mouth, a heart, mind, thoughts for all these acts? हमें जांचना है कि क्या मैंने मेरा हृदय, मेरा मन और मेरा जीवन क्या इन बातों के लिए दिया है? Am I against someone? क्या मैं किसी के विरुद्ध हूँ? Is there anything against is working on in my heart? क्या किसी के विरुद्ध मेरे हृदय में चल रहा है? God wants us to work on our life. परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे जीवन में काम करे। We come to Him with a clean and a good heart. उसके पास
शुद्ध मन के साथ आओ, साफ मन के साथ Clean yourself. अपने आप को शुद्ध Get करो, rid of all these things. इन सारी बातों से छुटकारा पाओ। Hypocrisy, ढोंगीपन, deceit, धोखा देना, दुश्मनी, slander. निंदा करना। You need to check very, very, very clearly. हमें बहुत साफ रीति से उसे जांचना है, Because we all think that we are going to be raptured. क्योंकि हम सब सोचते हैं कि हम उठा लिए जाएंगे। That's why Bible is saying those who are standing, think again. That they इसीलिए will not बाइबल fall. कहता है कि जो खड़े हैं वो सोचो कि वो गिर न पड़े। Check yourself. अपने आप को जांचो, How is your life? आपका जीवन कैसा है, How you're allowing yourself in कैसे this world? कैसे आप इस दुनिया में इजाजत देते हैं How अपने you're आप को, going through? कैसे आप जा रहे हैं इस Are दुनिया you में, faithful with God? क्या आप परमेश्वर के साथ विश्वसनीय Are हैं, you right with one another? क्या आप एक दूसरे से सही हैं, Is your mind clear? क्या आपका मन शुद्ध है, Is your heart witnessing? क्या आपका हृदय गवाही देता है Or it is a deceitful? या धोखा देने वाला। The heart is deceitful above all things. बाइबल कहता है कि हृदय जो है सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। So which type of heart you're carrying? तो कौन से तरह का हृदय आप लेकर चलते हैं, You need to check. आपको जांचना है। If you don't check, अगर आप जांचेंगे if नहीं, you don't recheck, अगर आप उसे परखेंगे then नहीं, how you are going to make up for rapture? तो आप कैसे उठा लिए जाएंगे, उसके लिए कैसे तैयारी करेंगे, How you are going to be in a rapture? कैसे आप उठा लिए जाने में होंगे। Oh, Jesus will come. यीशु मसीह आएगा। You know, every morning a bell rings out. हर रोज सुबह को बेल रिंग होता है हमारे घर पे। कचरा वाला, कचरा. So कचरा वाला comes to collect कचरा. कचरा वाली आती है कचरा लेने के लिए, But Jesus is not going to take kachra. पर यीशु मसीह कचरा को नहीं लेगा। Every kachra has to be get rid here. हर कचरा जो है इधर ही हमें छोड़कर जाना We होगा। need to work in our lives. हमें हमारे जीवन में काम करना है। As a gold passes through the fire जैसे सोना आग के भट्ठी में से जाता है and becomes purified. और वो शुद्ध होता है, So you need to check yourself. तो उसी तरह से आपको अपने आप को जांचना है Allow yourself to go through it. और अपने आप को इजाजत दो कि उसके दौरान जाए, That you may get rid of all these dirty things. कि आप इन सारी गंदी बातों से छुटकारा पाए। There should not be any malice कोई भी वैर भाव न हो in you. आपके अंदर, There should not be any deceit. कोई भी धोखा न हो, छल न करो। No, it's not good. नहीं, ये अच्छा नहीं है, It's not good for yourself. आपके लिए ये अच्छा नहीं है। Hypocrisy. डोंगीपन, Check. अच्छे से जांचिए, Whom I am satisfying? किसको मैं तृप्त कर रहा By हूँ, joining Zoom, whom I am showing that I am joined the Zoom? और जूम को ज्वाइन करके मैं किसको बता रहा हूँ कि मैंने ज्वाइन किया है, Or I am telling God, here I am. या मैं प्रभु को कह रहा हूँ प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, I need to love you. मुझे तुझसे प्रेम करना है, I need to hear a rhema word from you. तुझसे मुझे रेमा वचन को सुनना I है, need to get rid of many things, sir. और बहुत सारी चीजों से मुझे छुटकारा पाना है। Yes, many things have come हाँ। and they have chipkofied to me. बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे साथ चिपक गई है, I need to cut it off. मुझे उससे काटना है, I need to chop it off. मुझे उसे काट डालना है। I need to check, is there any hypocrisy? और हमें ये जांचना है कि क्या कोई छल और कपट है क्या मुझ में, Check. जांचना है। Envy, slander. डा निंदा, Is there anything like that? क्या इस तरह की कोई चीज है मुझ में, Then how can I go तो or मैं enter into the kingdom of heaven? तो कैसे मैं प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकता हूँ। Like a newborn babies, crave pure spiritual milk.
नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। So now he is not speaking about a meat, अब वो मटन के बारे में नहीं कह रहा a solid food, या जो अच्छा खाना हो उसके बारे में नहीं कह रहा, but he is telling पर वो कहता है like a newborn babies. नए जन्मे हुए बच्चों के समान। Have you seen a newborn baby? आपने क्या नए जन्मे हुए बच्चे को देखा है? He sucks milk. वो दूध को पीता है, Uh, चूसता है, if anywhere he gets, he tries to suck. और कहीं भी उसे मिल जाता है तो वो लेने की कोशिश करता If he है। doesn't get mama's breast, अगर मम्मा की छाती उसे नहीं then मिलती he will put his finger. तो वो अपने उंगली को डालता है, He sucks. वो उसे चूसता He है, craves for milk. वो उस दूध के लिए कश्मकश करता है, He craves for milk. दूध की लालसा करता You है। need to crave for the word of God. आपको परमेश्वर के वचन की लालसा करनी है, Crave for the spiritual milk. आत्मिक दूध की लालसा करनी Don't है। look to the right and left. आपके दाएं और बाएं न देखो, Don't waste your time. आपके समय को न गवाओ, But don't spend your time in other things. दूसरी चीजों में अपने समय को न गवा दो। Enough of your spending time in this world and worldly works. इस दुनिया में और दुनिया के कामों में बहुत हो गया समय गंवाना। But now, like a newborn babies, पर अब दूध पीते बच्चों के जैसे यानी crave pure milk, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, so that by it you may grow up into your salvation. ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। Salvation comes from this. उद्धार इससे आता When है you crave for the spiritual milk. जब आप आत्मिक दूध की लालसा करते हो। Paul says it may happen that I may lose my salvation after preaching everyone. पौलुस कहता है हो सकता है कि सबको प्रचार करते करते मैं अपने ही उद्धार को खो बैठूं। So I need to work out for my own salvation. तो मेरे खुद के उद्धार के लिए मुझे कश्मकश So करनी to है work out for our salvation, we need to crave a spiritual milk. और अपने उद्धार के कारण हमें निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करनी है, So that when you get that milk, कि जब आपको वो दूध मिल जाए, that word, वो वचन, that strength, वो सामर्थ्य, so that by it you may grow up into your salvation. कि आप अपने उद्धार में बढ़ते You जाओ, will grow. आप बढ़ेंगे। No one can stop your growth. आपकी बढ़ोतरी कोई भी नहीं रोक Your सकता। growth comes from God. आपकी बढ़ोतरी परमेश्वर की ओर से If आती you है। keep looking at Him, अगर आप उसकी ओर देखते रहो, you will be like a newborn baby craving for the spiritual milk. आप नए जन्मे हुए बच्चे हो के कितना? समान होंगे जो निर्मल दूध की लालसा करते हैं। That will bring up a growth. वो बढ़ोतरी को लेकर आता है। Now that you have tasted that the Lord is good. अब क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। Oh, hallelujah. You Hallelujah. tasted that Lord is good. और आपने ये स्वाद चख लिया Then कि how प्रभु can अच्छा you है, turn away from Him? तो उससे आप अपना मुंह कैसे मोड़ सकते How हैं? can you fulfill the desire of the flesh? और कैसे आप अपने शारीरिक इच्छाओं को पूरा करना How चाहते can you हैं? turn again to malice? कैसे आप उस वैर भाव की ओर मुड़ रहे हैं? How can you fill yourself with deceit? और कैसे आप जो हैं वो कपट की और छल की ओर जा रहे हैं? How can you be hypocrite? कैसे आप कपटी बन सकते हैं? How can you envy and slander? और कैसे आप डाह और निंदा कर सकते हैं? Glory. प्रभु की महिमा हो। Where you're going? आप कहाँ पर जा रहे What हैं? you're craving for? आप किसकी लालसा कर रहे हैं? As you have known the Lord, जैसे आपने प्रभु को चख you लिया, have tasted Him, आपने प्रभु का स्वाद चख लिया, you have experienced Him. आपने उसका अनुभव किया, You know that the Lord is good. और आप जानते हैं कि प्रभु अच्छा As you है। come to Him, जैसे आप उसके पास आते हैं, the living stone, rejected by men,
but chosen and precious in God's sight. उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। Hallelujah. Hallelujah. That stone, वो पत्थर, that capstone वो नींव का पत्थर will change your life, आपके जीवन को बदल will देगा, change your destiny. आपके मंजिल को बदल That देगा, capstone will make you like Himself. और वो नींव का पत्थर आपको उसके जैसा ठहराएगा। When you get rid of all that dirt, अगर आप इन सारी gandagi, गंदगी से छुटकारा पाएंगे, get rid of malice, deceit, hypocrisy, envy, and slander. वैर भाव छल कपट डाह निंदा से अगर आप छुटकारा You पाएंगे, need to continually check your heart. तो आपको लगातार अपने हृदय को जांचना है। Many times we check others' heart. बहुतों बार हम दूसरों के हृदय को जांचते हैं। Dear church, हे प्यारी कलीसिया, if you believe that God is speaking with you, अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, work over it. तो उस पर काम कीजिए, Because God has given me this word. क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है That check your own hearts. कि आप अपने खुद के हृदयों को जांचें। Is there any malice? क्या कोई वैर भाव है, Is there any deceit? या कोई कपट, Is there any hypocrisy? छल या कपट है, Envy. डाह किसी के खिलाफ कुछ और slandering. या निंदा करना। Check. आप जांचिए। If you slander anyone, अगर आप किसी की निंदा करते हैं तो, if you have did that job, अगर आपने ऐसा काम किया है, then come to God. तो प्रभु के पास आए Ask forgiveness. और उससे क्षमा मांगे। Go to them उनके पास जाए whom you have betrayed. जिनको आपने धोखा दिया है, Ask forgiveness. उनसे क्षमा मांगे। Church, हे कलीसिया, if you become like a newborn babies, अगर आप नए जन्मे हुए बच्चे के नाई बने, craving for the pure milk of निर्मल spiritual milk, आत्मिक दूध की लालसा करते हैं, there is your growth. तो वहां पर आपकी बढ़ोतरी है। You will grow up in your salvation. आप अपने उद्धार में बढ़ोतरी को पाएंगे। Yes, God is going to bless you. परमेश्वर आपको आशीष देगा। You know, आप जानते हैं, I've heard मैंने सुना है many people quoting this word बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं in from Ephesians. एफीसी का रास पत्र Children, से, obey your parents in the Lord. हे बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करो। But are you obeying? पर क्या आप आज्ञा पालन कर रहे हैं? You are obeying in a wrong time. आप गलत समय पर आज्ञा पालन कर रहे हैं। You are making every word as your own instrument to sin. और हर एक वचन को आप लेते हो और अपना पाप करने का, पाप की लालसा को पूरा करने का एक प्यादा बना देते हैं। कोई आया The one who was with us, जो हमारे साथ था, he said, उसने कहा, now I'm going, अब मैं जा रहा हूँ, because my father told me, क्योंकि मेरे पिता ने मुझसे कहा, my mother told me. मेरी माँ ने मुझसे कहा। Your father and mother will tell you not to go, then you will leave church. अगर आपका माता पिता आपको कहेगा कि चर्च छोड़ो, तो क्या आप छोड़ देंगे? You will leave fellowship of saints. आप संत गणों के सहभागिता को छोड़ देंगे? Really, you are so obedient. इतने आज्ञाकारी हैं आप? Is the Spirit of God working in you? क्या परमेश्वर का आत्मा आप में कार्य कर Are रहा you है? open to the Holy Spirit? क्या आप पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को खुला सा कर Check रहे your हो? hearts. अपने हृदयों को जांचो। Who is guiding you कौन आपको अगुवाई कर रहा है and whose guidance you are following? और किसकी अगुवाई से आप आगे बढ़ रहे हैं? Why you people are not there from many days in the church? और बहुत दिनों से आप कलीसिया में क्यों नहीं हैं? Why the others are not there? क्यों दूसरे नहीं हैं? What happened to them? उन्हें क्या हो गया? Which teaching they are eating? कौन सा शिक्षण वो खा रहे हैं? Church, हे कलीसिया, don't follow enemy. दुश्मन के पीछे मत जाओ, Don't follow his tactics. उसके
उसकी गलत भावनाओं के स्कीम्स के अंदर फंस मत जाओ, You are not unaware of the schemes of the enemy. क्योंकि आप दुश्मन के चाल से वाकिफ नहीं है, ऐसा नहीं है। अपरिचित नहीं है. You know every scheme of the enemy. आप दुश्मन के हर चाल को जानते हैं, Still, फिर भी you are taking the word of God आप परमेश्वर के वचन को लेते हैं and using it in a wrong way. और गलत तरीके से इस्तेमाल करते That हैं, doesn't fit for you. वो आपके लिए अच्छा नहीं है। Amen? आमीन। Do you know that? क्या आप ये जानते That हैं? man said, my father told me. उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पिता ने कहा। Acha man said, Jesus, I am going to follow you. एक व्यक्ति ने यीशु से कहा, यीशु मैं तेरे पीछे होऊंगा। In Luke 9th chapter. लूक का 9वां अध्याय। And Jesus said, और यीशु ने कहा, birds have a nest and foxes have holes. Son of man doesn't have a place to keep his head. पक्षियों के लिए घोंसला, लोमड़ी के लिए होल, और परंतु परमेश्वर के पुत्र के लिए सिर रखने का जगह नहीं है. Then that man become nervous. और व्यक्ति जो है वो नर्वस हो गया। Why? क्यों? He himself doesn't have a place to stay. उसको खुद के पास रहने की जगह ही नहीं है। How he can follow? वो हम कैसे उसके पीछे चले? That's why he left Jesus and went away. इसीलिए वो यीशु को छोड़कर चला गया। Another man, दूसरा व्यक्ति, Jesus looked at him यीशु उसकी ओर देखा, and he said, उसने कहा, come follow me. आओ मेरे पीछे हो लो। And the man said in Luke और 9:59, लूक का 9:59 में the man said, मनुष्य ने कहा, Lord, first let me go and bury my father. उसने यीशु से कहा, प्रभु मुझे पहले मेरे पिता को गाड़ने दे। You know who was that man? आपको मालूम है वो व्यक्ति कौन था? Matthew 8:21-22 says, मत्ती 8:21 से 22 में कहता है, he was a disciple. वो शिष्य था। Do you know what is disciple? आप जानते हैं शिष्य का मतलब? Disciple means follower of Jesus Christ. शिष्य मतलब यीशु के पीछे चलने वाला। When he follows Jesus, जब वो यीशु के पीछे चलता है, then how can he say, let me first go and bury my father? तो कैसे वो कह सकता है कि मुझे मेरे पिता को गाड़ने के लिए जाने दे? And we can see in this season, और हम इस परिस्थिति में देख we सकते have हैं, seen also, हमने देखा भी है, as Jesus said, जैसे यीशु ने कहा let the dead bury their dead. कि मरे हुए, यीशु ने कहा मरे हुए खुद मरे हुओं को गाड़ देंगे। लेकिन आप जीवित हो. Who are you? आप कौन हैं? You are filled with life. आप जीवन से भरे हुए Then how हैं। can you compromise with the world? तो आप कैसे दुनिया के साथ समझौता How करेंगे? can you become one with the world? कैसे आप दुनिया के साथ एक हो जाएंगे? What is your first priority? और आपका पहला उत्तम बात क्या है? To bury your father or to follow Jesus? अपने पिता को गाड़ना या यीशु के पीछे चलना? I don't know you have seen properly or not. मैं नहीं जानता कि आपने सही रीति से देखा है या But नहीं, in these 2 years, पर इन 2 सालों में municipality burned many deads. म्युनिसिपैलिटी ने बहुत सारे मरे हुओं को गाड़ा Many trusts came forward to bury and burn the deads. और बहुत सारे ट्रस्ट्स आगे आए आगे आए जो मरे हुओं को मरे गाड़ने के लिए और हुओं को जलाने गाड़ने के लिए. Hallelujah. हालेलुया। Somebody think closely. अच्छे से आप सोचिए, Whatever Jesus said, यीशु ने जो कुछ कहा that is fulfilled. वो पूरा हुआ। Dead bury their dead. मरे हुए अपने मरे हुओं को Those गाड़ेंगे। spirits is not ignited. जिनकी आत्माएं अभी तक जली नहीं, Those spirit is not touched by the Lord. जिनकी आत्माएं अभी तक प्रभु से उनका स्पर्श नहीं हुआ, They are dead. वो मरे हुए They हैं। can't understand Lord. वो प्रभु को समझ नहीं पाते। That's why they are still in deceit. इसीलिए वो अब तक फसाहट में भी है। फसाहट में They are हैं। still with malice. और वो वैर भाव में They are हैं। still with hypocrisy. वो कपट में हैं। They are still envy. वो ढा में है। All those who have these things, जिनके पास ये सारी चीजें हैं, they are dead people. वो मरे हुए हैं। They can't go or enter into the kingdom of God. वो परमेश्वर के
राज्य में प्रवेश नहीं to कर enter सकते। into kingdom of God, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के get लिए rid of these things. इन सारी बातों से छुटकारा If पाओ। you don't get rid of these अगर things, इन बातों से छुटकारा नहीं पाया alas, तो दुख की बात है, oh, very bad. बहुत बुरा। That man, grown up man says, I need to obey my father. That's why I took this step. वो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति, बड़ा हुआ आदमी, प्रौढ़ आदमी ने बोलता है कि मेरे बाप का बात मेरे को मानना पड़ेगा ना. That's why I don't come. इसीलिए मैं नहीं आता, I follow my father. मैं मेरे पिता के पीछे चलता How हूँ। can you follow your father when he has not given you salvation? कैसे आप अपने पिता के पीछे जाते हैं जिसने आपको उद्धार ही नहीं दिया? How can you follow your parents when they have not instructed you in the word? कैसे आप माता पिता के पीछे चलते हैं जिन्होंने आपको परमेश्वर का मार्ग ही नहीं दिखाया? Bible says here clearly, children, obey your parents in the Lord. बाइबल साफ रीति से कहता है, बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, प्रभु में करो, not out of the Lord. प्रभु से बाहर नहीं। Don't entertain any nonsense thought from your parents. आपके माता पिता का कोई भी गलत विचार को आप एंटरटेन मत He is करो। going to work in your life. वो आपके जीवन में काम करेगा। He is going to fulfill every need of yours. वो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा, Every word which is coming to you, और हर एक वचन जो आपकी ओर आ रहा है उसे जांचो। even though it is from the parents, वो माता पिता से क्यों ना आए, check it. उसे जांचो। Is it from the Lord? क्या ये प्रभु की ओर Is से it है? in the Lord? क्या ये प्रभु की ओर से है? Let's remember आइए हम याद करें our Lord Jesus. हमारे प्रभु यीशु He को। faced Satan, उसने शैतान का सामना किया, and Satan said, और शैतान ने कहा, "Oh Lord, हे प्रभु, they make these stones bread. इन पत्थरों को तू रोटी बना ले। How pleasant is it?" कितना अच्छा है ये। You know, the Satan comes like this. शैतान इस तरह से आता Satan है। knows your weakness. शैतान आपके कमजोरी को जानता You are है। hungry. आप भूखे हैं, You need food. आपको खाना Then चाहिए, command that stones to become food. तो इन पत्थरों को आज्ञा दे कि वो रोटी बन जाए। Jesus said, यीशु ने कहा, "Man shall not live by bread alone." मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता। Church, हे कलीसिया, how you are responding आप कैसे उसको प्रतिक्रिया दिखा रहे to हैं? your parents, आपके माता पिता to को, others? दूसरों को, Are they instructing you in the word? क्या वो आपको परमेश्वर शिक्षण के वचन में आपको शिक्षण दे रहे Or हैं, else their devil is using them? या दुष्टों ने इस्तेमाल कर रहा है? You need to check your hearts. आपको अपने हृदय को जांचना I'm है। sharing this all because the enemy can work against anyone like और मैं this. ये बांट रहा हूँ कि क्योंकि दुश्मन किसी के विरुद्ध भी काम कर सकता You है। need to be very alert. आपको बहुत ही जागरूक रहना है। How you're responding, कैसे आप प्रतिक्रिया how दिखा you're रहे हैं, working, कैसे आप काम कर रहे what हैं, you're allowing, क्या आप इजाजत दे रहे what हैं, you're opening yourself for, और आप किस चीज के लिए खुलासा है, what खोल के रखे हो अपने आप को, for what you open yourself, अपने आप को किस चीज के लिए खुला रखा है, for what you shunt. किसके लिए आपने बंद कर दिया है। Are you shunting the door for the church? क्या आप कलीसिया के लिए दरवाजा Are बंद you कर रहे shunting हैं? the door for the agape love? क्या आप अगापे प्रेम के लिए अपना दरवाजा बंद Are कर you रहे हैं? shunting the door for the brotherly love? क्या आप भाईचारे के प्रेम के लिए अपना दरवाजा बंद कर रहे Are हैं? you thinking to be a Christian is a professional work? या आप सोच रहे हैं कि क्रिस्ती यानी प्रोफेशनल काम है? Church, हे कलीसिया, it's a love work ये प्रेम का काम है started from the cross of Calvary. जो कलवरी के क्रूस से शुरू हुआ। Can you look at that man? क्या आप उस व्यक्ति की ओर देख सकते His हैं? first priority was not Lord. उसकी पहली उत्तम स्थान है वो प्रभु नहीं था। His first priority was to bury the dead. उसका पहला उत्तम स्थान था मरे हुओं को गाड़ना है। They call me Lord, 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 वो मुझे प्रभु प्रभु कह के बुलाते but their हैं, hearts are far from पर him. उनके
हृदय मुझसे बहुत दूर है। Church, हे your कलीसिया, Lord knows everything. आपका प्रभु सब कुछ जानता है। He knows everything. वो सब कुछ जानता है। Even He knows your dreams. वो आपके स्वप्नों को Even He जानता knows है। the thought before ever it entered into your chota sa brain. आपके छोटे से दिमाग में घुसने से पहले आपके विचार को जानता है। He is God. वो परमेश्वर है। He is not a man. वो मनुष्य He नहीं, is not the son of man. वो नहीं मनुष्य का पुत्र है। To say, oh, I did it mistake. ओ मैंने गलती से कर दिया, By mistake it happened. ओ गलती से ऐसा हो गया। No, नहीं, our God is God. हमारा परमेश्वर परमेश्वर है। Our God is powerful. हमारा परमेश्वर You सामर्थ्यशाली है। have wonderful God, church. आपके पास अद्भुत परमेश्वर And है that कलीसिया। wonderful God is going to take you up. और वो अद्भुत परमेश्वर आपको उठा लेगा। To whom you're listening? आप किसकी सुन रहे Why हैं? you're listening? आप क्यों सुन रहे हैं? Peter said, पतरस ने कहा and he did it. और उसने किया। He said, उसने कहा you have the living word. आप You are the true Messiah. आप जो है सच्चे मसीहा है। Yes. And he followed. और वो पीछे हो लिया। Many ups and downs might come. बहुत सारे उतार चढ़ाव आए Many falls may happen in our lives. और हमारे जीवन में कितनी गिरावट क्यों ना आए, Don't leave the path. पर मार्ग को छोड़ो मत Don't turn away. और पीछे मत मुड़ो। Don't turn to right or left. आपके दाएं बाएं न मुड़ो, Get up, उठ जाओ, arise, खड़े हो जाओ and shine. और चमको, For the Lord has come on you. क्योंकि प्रभु आपके ऊपर His प्रकाशमान हुआ light है। has come on you. उसका प्रकाश आपके ऊपर He's आया going है। to transform your life. वो आपके जीवन को बदल He's देगा। going to change your destiny. वो आपके मंजिल को बदल देगा। God is awesome. परमेश्वर अद्भुत You है। need to hear God. आपको परमेश्वर को सुनना You जरूरी है need to have a godly counsel. और आपको परमेश्वर की समझ आना बहुत You जरूरी need है। to keep looking at Him. आपको उसकी ओर देखना होगा। Church, He Hey, will Kalisia. never fail you. वो कभी भी आपको नाकामयाब नहीं करेगा। Hallelujah. Hallelujah. Wonderful God. अद्भुत परमेश्वर, Powerful God. सामर्थ्यशाली Who खुदा, was, जो था, who is, जो है, and who is going to come. जो आने वाला है, That same one वही खुदा will never leave you. वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। So all the disciples, तो उसी तरह से सारे शिष्य, 12 disciples, 12 शिष्य, they might have fallen. हो सकता है वो गिर गए हो, They have stood. फिर से वो उठ This गए। is a time to stand. ये समय है उठने का। This is a time to become one. ये समय है एक होने के This is लिए। a time to bring our thoughts and our heart into submission to the Holy Spirit. ये समय है कि हमारे खुद के विचारों को पवित्र आत्मा के अधीन कर देना। This is a time not to heed flesh, अब ये समय नहीं है कि हम शरीर का सुने, but this is a time अब समय है to hear God. प्रभु का सुनना है। This is a time अब समय है to give your life totally to God. अपना पूरा जीवन प्रभु को देना है। Yes, हाँ, pray, प्रार्थना करो, turn to one another. एक दूसरे की ओर मुड़ो Just do not miss the mark. और अपने मंजिल लक्ष्य को, yeah, खो न दो। yes, change your hearts, अपने हृदय को बदलो, change your mind. अपने मन को बदलो। 1 Peter 2:11. पहला पत्रस 2:11। Behold, I urge you, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता as हूँ, a foreigners, जो आपको परदेशी कहते हैं, exiles, to abstain from desires of flesh, which wars against your soul. यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। You are a foreigners here in this land. आप इस भूमि पर परदेशी है। You have a rules of foreign. आपको परदेश के नियम है That God give you rules. और वो परमेश्वर आपको नियम देता He है wants you to live in this life और वो चाहता है कि आप इस जीवन को जिए as a foreigners यात्री बनकर and exiles, और परदेशी बनकर to abstain from all the desires of the flesh. और सांसारिक अभिलाषाओं से
बचकर, Yes, abstain for all desires of flesh. संसार की सारी अभिलाषाओं से दूर रहकर, Then only तभी ही word of God will be clear to you. परमेश्वर का वचन आपके लिए खुलासा होगा। Eyes, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life will pull you away. जीवन का जो घमंड है, आंखों की वासना, आंखों की वासना आपको खींच लेगी, away from God. परमेश्वर से दूर लेकर Make जाएगी, these stones food. कि इन पत्थरों को रोटी बना ले, Eat it. उसे खा। Church, हे कलीसिया, what your master did, आपके मालिक ने क्या किया? he rejected. उसने नकार दिया। You need to learn to reject the wrong things. आपको जरूरी है कि गलत चीजों को आप नकार दें, That parents और वो माता पिता or the people या लोग or the world या दुनिया will come with the tactics and schemes of Satan वो शैतान के चाल से आएंगे and to create a big fall in your life. और आपके जीवन में बहुत बड़ी गिरावट को लेकर आएंगे। Check your hearts. अपने हृदय को Check जांचिए, yourself. अपने आप को जांचे, Be a foreigners या in this land. इस भूमि पर परदेशी बन Be जाए, like an exiles यात्री बन जाए, and abstain from all the activities, desires of flesh. और संसार की, शरीर की सारी अभिलाषाओं से बचे रहे। Why, you know? आप जानते हैं क्यों? These desires of the flesh which wars against your soul. क्योंकि ये सारी अभिलाषाएं जो आपके आत्मा से युद्ध करती है, When you permit जब आप इजाजत देंगे the desires of flesh, इस देह की जो अभिलाषाएं हैं, वासनाओं को, अभिलाषाओं को, then you're opening the door for death. तब आप मृत्यु के लिए दरवाजा खोलती है, You're opening the door for separation. और आप अलगाव का दरवाजा खोलते हैं, You're shunting the door और of आप love, प्रेम के दरवाजे को बंद करते हैं, unity, एकता के दरवाजे को, oneness. एकता। God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। Open a door wide चौड़ा रास्ता खोलो, दरवाजा खोलो for God. परमेश्वर के लिए, Crave for spiritual milk. और आत्मिक निर्मल दूध की अभिलाषा रखो, That God may bless you. कि परमेश्वर आपको आशीष That दे, you may experience Him. कि आप उसका अनुभव ले। Conduct your lives with such a honor among the Gentiles. अन्य जाति में तुम्हारा चाल चलन भला हो। Hallelujah. When we हालेलुया। all are together, जब हम सब एक है, when we all are one, जब हम एक है, when we all live life, जब हम जीवन को जीते हैं, how my life is, मेरा जीवन कैसा है, what my life is proclaiming, और मेरा जीवन क्या कर रहा है, what it is proclaiming. क्या वो घोषणा कर रहा है, Check it. जांचो। Am I a speaker for Christ? क्या मैं क्रिस्त के लिए बोलने बोलने वाला वाला हूँ, Am I a mouthpiece for God? या परमेश्वर के लिए बोलने वाला हूँ, Am I a servant of God? या परमेश्वर का दास हूँ, Or who am I? या मैं कौन हूँ? Conduct your life in such a honor among the Gentiles that though they slander you as evildoers, they may see your good deeds and glorify God on that day He visits us. अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। They may look at your good deeds वो आपके अच्छे कामों को देखे, and glorify Father in और heaven. पिता जो स्वर्ग में है उसकी महिमा How करें। you live, आप कैसे जीते हैं, what testimony you carry, कौन सा गवाही आप लेकर what चलते हैं, people speak about you, और लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, why they speak like that. और ऐसा क्यों कहते हैं। Let us change our conduct. तो आइए हमारे चाल चलन को बदले, Make ourselves ready. अपने आप को तैयार Be करें, like Elisha. एलीशा के जैसा बने, As Elijah put his cloak on him, जैसे एलिया ने अपने चादर को उसके ऊपर फेंका। Elisha took oxen
और उसने बैलों को लिया, बैलों को लिया he chopped it, और उन्हें काट डाला he gave a sacrifice and gave a party, और उसने बलिदान चढ़ाया and he went away from his fathers and mother. और वो माता पिता से दूर चला गया. He heard God. उसने परमेश्वर की सुनी. Not only that, इतना ही नहीं, even Elijah said, यहाँ तक कि एलिया ने कहा in that time, go get away, I'm going. जा तू चला जाओ क्योंकि मैं जा रहा I'm हूँ. going to Gilgal. मैं गिलगाल जा रहा I'm going to हूँ. Jericho. मैं जेरिको जा रहा हूँ. Oh, where not, he said. और कहाँ उसने नहीं कहा, But everywhere, पर हर जगह Elisha followed. एलिशा एलिया के पीछे चला. Church, हे कलीसिया, now Jesus is coming soon. अब यीशु मसीह जल्द आने वाला है. Conduct yourself. अपने आप को बना लो. We don't know how long we will be in Zoom. हम नहीं जानते कब तक जूम में रहेंगे. Join in the right time. सही समय पर आइए. Anyone looks at you or not? कोई आपकी ओर देखे या न देखे, Worship God. प्रभु की आराधना Let's करें. worship Him आइए हम आराधना as a करें. one church. एक कलीसिया होकर Open your mouths. अपने मुख को खोल कर Give thanks to और God. प्रभु को धन्यवाद दे. People used to look at my friend लोग मेरे दोस्त की ओर देखते थे and they used to say, और वो कहते थे, here only joy also will be there somewhere. यहाँ पर ही कहीं नजदीक ही जॉय भी होगा. Or else if they have seen me, अगर या तो उन्होंने मुझे देखा they used to say, तो वो कहते here थे only somewhere his friend is also will be with him. तो उसका दोस्त भी यहीं इर्द गिर्द कहीं होगा. Church, we need to walk in such a oneness. हे कलीसिया, हमें इतना एक होकर चलना है. We need to be one हम in this end of the end इस days. अंतिम के अंतिम दिनों में एक होना है. I'm speaking about one body of Lord Jesus Christ. और मैं क्रिस्त यीशु मसीह के एक देह के बारे में कह Let's रहा हूँ. all be having a mind of Christ. हम सबों को क्रिस्त का मन हो. One mind. एक मन, One mind. एक मन. Crave for the spiritual milk. आत्मिक दूध की लालसा रखो. If God is saying to us, अगर प्रभु हमसे कहता है, if God is speaking up, अगर प्रभु हमसे बातें कर रहा है, please work very strongly over these things. इन बातों पर मजबूती से आप ध्यान दीजिए. For it is better यह अच्छा होता to you to enter into the kingdom प्रभु के राज्य में प्रवेश करना by chopping out one hand. एक हाथ को काट डालकर. It is better यह अच्छा होता to enter into God's kingdom प्रभु के राज्य में प्रवेश करना by plucking out the eye एक आंख को निकाल कर, rather than going to hell with both the hands. दोनों हाथों को लेकर नरक में जाना. उससे बढ़कर It is far better than ये बहुत ही अच्छा होता going into hell with both the eyes. नरक में दोनों आंखों के साथ जाने से बढ़कर एक आंख जाना प्रभु के घर में उत्तम है. If God is ministering, His Holy Spirit is ministering. अगर प्रभु का आत्मा सेवकाई कर रहा है, Allow God. प्रभु को इजाजत दो. Let there be healing. चंगाई हो, Let there be miracle. अद्भुत चमत्कार हो, Let there be power demonstration. सामर्थ, उसका सामर्थ प्रकट हो. Work seriously. गंभीरता से काम करो. His promises, A and Amen. उसके अभिवचन हाँ और आमीन है. Always हमेशा for you आपके लिए in Christ Jesus. क्रिस्त यीशु के अंदर. Your labor in Christ आपका क्रिस्त के अंदर परिश्रम will not go in vain. वो व्यर्थ में नहीं Come on, be जाएगा. serious. आप सीरियस हो जाओ. Work on yourself. अपने आप पर काम करो. Sweet sound in your ear. Whatever we do, whatever we say,
आपको स्पर्श करे, चंगा करे। Let the Holy Spirit reside in पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करे you. Make a home और घर बनाए and strengthen you. और आपको सामर्थ दे, Provide you आपको दे all that you need. जो कुछ आपको चाहिए Exactly in a right time. जिस समय आपको जरूरत है उस सही समय पर। May the Lord God Almighty envelop you. प्रभु परमेश्वर आपको ढके रखे। May His strength come on you. उसका सामर्थ आपके ऊपर आए, May His love उसका प्रेम stay on you. आपके ऊपर रहे। May you experience His presence. आप उसके उपस्थिति का अनुभव लें। We are very much honored with your presence, Lord. तेरी उपस्थिति से हमारा बहुत आदर होता है। Yes, Lord. हाँ प्रभु, All we pray. और हम सब प्रार्थना करते हैं, Come, आ reign in us. हम पर राज्य कर, Let your perfect will be done. तेरी परिपूर्ण इच्छा पूरी हो। Let every weakness हर एक कमजोरी in the flesh शरीर में be out. निकल जाए Let the spirit be strengthened. और आत्मा सामर्थ को पाए Let the spirit man be strong. और मनुष्य का जीव सामर्थ को पाए। We praise you, Father. हम तेरी स्तुति करते हैं। We pray for all those in the house. जो हर एक जो घर में है, We pray for every testimony. हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, हर गवाही के लिए प्रार्थना We करते pray for your righteous right hand to rest on हैं और तेरा धार्मिक दाहिना हाथ मांगते हैं everything that connected with each and everyone in the house. और हर चीज जो प्रभु के घर से जुड़ी हुई है With everyone in the house. और हर एक के साथ घर में Whatever is connected. जो कुछ जुड़ा हुआ है Let all that be blessed. वो सब आश्रित हो जाए Every individual here, Lord, और हर एक व्यक्तिगत रूप से यहाँ be पर strengthened. सामर्थ को पाए, Be strong. सामर्थशाली हो जाए। Yes, Lord. हाँ प्रभु, In this time, इस समय let your anointing come on them. तेरा अभिषेक इन पर आए, In Jesus' loving name. यीशु के प्यारे नाम में, Amen. आमीन।